See, now we shall start with the concept of potentiometer again. And in this particular topic, initially what we have discussed was potentiometer is the device which measures what? Potential. Especially it is utilized to measure what? EMF of the battery. So, the applications of potentiometer. Again, a device which measures the potential, especially what? EMF of the battery is called potentiometer. Is called. We have to write three applications. First application is what? Calculating EMF of a battery. Second application is comparison of the EMF of the cells, and then calculation of internal resistance of the cells. There are three applications we have. Okay, so here EMF of the battery is already mentioned in the top line, so I'm not writing again here, right? So potentiometer is the device which measures the EMF, which compares the cells, and then internal resistance we can calculate. Now for this particular thing, we are going to use the concept of terminal voltage. See, this is just a note. This is not going to be right in examination. This is just a note. See, terminal voltage of the battery we know very well, right? Terminal voltage. Now, what is the terminal voltage? Formula of the terminal voltage, it is V is equal to E minus IR. Now, whenever we take a battery, this is the battery, suppose. Okay, this is positive terminal, this is negative terminal, and if I put a voltmeter in between, okay, if I put a voltmeter in between, this voltmeter will indicate V is equal to E minus IR, if R is the internal resistance of the battery, right? And E is the EMF of the battery. बराबर के नहीं? This E minus IR is known as basically terminal voltage. So if I just connect a voltmeter across a battery, I get terminal voltage. But what if I do something so that the current passing through this particular becomes zero? अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो जीरो हो जाए, if current, okay, supplied by battery I becomes zero, then V becomes E. V becomes E. खबर पड़ी कि ना पड़ी? V becomes E. That means if I want that my voltmeter should give answer of EMF, in that particular case, I need to make this current zero. See, I can make this small r also zero, but practically it is not possible. I cannot make resistance of this battery equal to zero. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? And on the basis of this idea, we have designed a device called potentiometer. Now, how this potentiometer looks like, you can see here. This is the potentiometer in front of you, right? You can see this is on the left side. Left side, there is a wooden plate. If you go into the laboratory, this type of wooden plate you will find. And on wooden plate, there is a 400 meter long manganese wire is connected. So this point to this point, see this blue lines are basically wire. And this is how it is connected, right? This is 100 centimeter. The second, this is first 100 centimeter. This is second 100 centimeter. This is third 100 centimeter. And this is fourth 100 centimeter. So it is 400 centimeter. That means what? 4 meter. So 4 meter long wire is connected like this. This is a manganese wire, and they are joined by this copper connectors. So this is copper connector, this is copper connector. And why we are using copper connector? Because resistivity of copper is extremely low in comparison with what? Manganese wire. So just imagine that current is flowing from A.
current is reaching to this particular place. Suppose current is reaching to this particular place. Now it has to pass through this copper. So actually copper will provide some resistance actually, right? But this copper has a resistivity and resistance extremely low, so that this resistance is completely ignorable in comparison with what? The resistance of this manganese wire. Okay, we can ignore that. We can ignore resistance of what? Copper in comparison with resistance of manganese wire. So actually from A to B, even if it is not exactly 400 centimeter, this copper connectors are also taken into account. But because of the low resistance of that copper connectors, I can ignore them, and I can assure myself this is exactly 400 centimeter long wire. Okay, so this is the kind of structure you always find in the laboratory. Now how you will connect the circuit? See, you will connect this B with the what? Rheostat. This is rheostat. This is rheostat, right? Now this rheostat is connected with the battery. Okay, this R is the internal resistance of the battery, small r. Okay, then you need to connect what? A resistance box over there. वहां पे आप resistance box connect करोगे, and फिर आप यहाँ पे connect करोगे कहाँ पे? A पे. तो ये outer circuit जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, right? ये जो बॉक्स के सिवा जो आपको दिखेगा, आपको लैब में जाके आपको सब कुछ इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा. ऑब्वियसली वो लैब में जाओगे ना तो वहां पे एक स्विच भी देंगे आपको, तो यहाँ पे आप स्विच को भी ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बीच में एक स्विच भी लगाओगे, बट मैंने इस स्विच को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है, राइट? सो सिर्फ स्विच के सिवा जो भी आप लेबोरेटरी में लगाते हो ना, वो मैंने सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है. सो दिस इज व्हाट द पोटेंशियोमीटर इज. ये पोटेंशियोमीटर होता है. अभी इसी पोटेंशियोमीटर का एक सिंप्लीफाइड सर्किट मैंने राइट हैंड साइड आपको दिखाया हुआ है. देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में ये है, ये ए है अपना इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड बी है. तो ए और बी के बीच में मैंने सर्किट कनेक्ट किया है. तो देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में भी मैंने सर्किट ही कनेक्ट किया है. यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी जो है दैट इज कनेक्टेड विथ व्हाट? कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड विथ ए. Similarly here positive pole of the battery is connected with resistance box, and resistance box is connected with A. And then negative terminal of this particular battery, okay, on the left hand side is directly connected with B. So negative terminal of the battery is directly connected with B. See, I have just written internal resistance on the positive terminal. Here I have written internal resistance on the negative terminal. That doesn't make a difference. Okay, so that is the same thing. On a simplified version, I have not indicated the rheostat, so that it is easy for us to understand better. So this is left side is a laboratory circuit, while right side is a theoretical circuit. And from A to B, you can see this is long wire of 400 centimeter long wire you have. Okay, and then background yellow I've done. That background yellow is indicating nothing but what? It is nothing but a scale. Okay, a meter scale it is at. Okay, so it is going to be used to measure what? Length. So this is scale. You can just imagine this scale is 400 centimeter long scale. Practically we don't have a 400 centimeter long scale, so that in laboratory what we do, we have a maximum long scale available in market, that is 1 meter. So we are just connecting a wire of 400 centimeter like this. This is not directly one wire is connected. Okay, and that will make also the things easy, because that will make an instrument little smaller. Otherwise 4 meter long instrument is to be created. So understood what potentiometer looks like, guys? Yes, sir. It's Yes, perfectly Yes, visible, sir. right? क्लियरली यहाँ पे आपको समझ में आ गया. चलो अभी पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं. What principle is there potentiometer works actually? So let us consider a potentiometer wire. Okay, let us consider a potentiometer. Having wire of length L, which is usually 400 centimeter. Okay, the resistance
per unit length of wire is rho. L लेंथ का वायर मैंने ले लिया और L लेंथ के वायर के अंदर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर क्या है? रो है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू रो L. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ये समझ में आया? ये कैसे हुआ? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना? तो कि रो. तो अपने L जितनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कि रो इंटू L हो जाएगा. यू कैन सी दिस वायर from A to B, the length is capital L. So resistance from A to B is basically rho L. Is that clear everyone? चलो इसके बाद let us calculate the current. कितना करंट फ्लो होगा बोलो? ये जो करंट I है ना, वो कितना होगा? ओम्स लॉ के हिसाब से आपको बोलना है. करंट जो फ्लो होगा वो होगा टोटल EMF अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस यानी ये कैपिटल R आएगा, फिर प्लस स्मॉल आर, A और B के बीच का रेजिस्टेंस, A और B के बीच का रेजिस्टेंस, एंड देन क्या आएगा? ये स्मॉल r आ जाएगा. समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब देखो, आई एम चूजिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट C. ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जस्ट हाँ या ना बोलना. E अपॉन ये रेजिस्टेंस R है, R A B को हमने क्या लिखा? अभी दिखा रो इंटू कैपिटल L प्लस स्मॉल r. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. चलो इतना क्लियर हो गया सबको भाई? करंट थ्रू सर्किट तो मुझे मिल चुका है. उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद हम करेंगे, हम एक पॉइंट लेते हैं C ऑन द वायर. ओके, लेट अस कंसीडर point C on potentiometer wire at distance L from E. Okay, and therefore I can say resistance of AC wire कितना होगा? A से C तक का resistance होगा rho into small l, because rho is what? Resistance per unit length. यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना? रो. तो स्मॉल l जितनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कि रो इंटू L हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? RAC इज इक्वल टू रो L हो जाएगा. चलो इतना तो समझ में आ चुका है मुझे कि RAC इज इक्वल टू रो L. अब उसके बाद क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? तो हम क्या करेंगे? A और C के बीच का वोल्टेज निकालते हैं. देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C. A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने निकालते हैं. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VAC होगा, क्योंकि अगर करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो यहां से जाने वाला करंट भी कौन सा होगा भाई? I होगा कि नहीं होगा? यहां से I निकलेगा, इस AC में से I जितना करंट पास होगा, और VAC की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? IRAC मिल जाएगी. और IRAC मिलने की वजह से I can just write that VAC is equal to I rho into L. समझे कि नहीं समझे? VAC is equal to I rho into L. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, VAC is equal to KL. Okay, where ये जो K है ना, that is basically I rho. और आप K को आप ऐसे भी लिख सकते हो, VAC अपॉन L, एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर. इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर. समझ में आया कि नहीं आया? इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर. ओके, इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर. ओके, सो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन दैट पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर वायर. और यहां से
हमको क्या पता चलता है? सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन we can say VAC is proportional to what? L. हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? VAC is proportional to L and therefore हम ऐसा भी बोल सकते हैं therefore potential, एक मिनट, potential difference, okay, between any two points on potentiometer wire is directly proportional to length of that part, right or not? Length of that part. This is principle of what? Potentiometer. See, what we were discussing this particular circuit. Now I've just told you people कि थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि ये कैपिटल R जितना कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है और ये स्मॉल r जितना रेजिस्टेंस यहाँ पे है. अगर आप ये दोनों रेजिस्टेंस को भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पोटेंशियल बिटवीन A and B, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? E. हाँ या ना, जल्दी से बताओ. यस. A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो कि ये बैटरी के EMF के जितना होगा. समझे कि नहीं समझे? ये इतना समझ में आ चुका है. तो यहाँ पे जो हमने लिया था ना सबसे पहले, ये जो VAB इज इक्वल टू रो एल, ओके, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि यहां पे अगेन मैं एक छोटी सी नोट लिख रहा हूं कि इफ वी इग्नोर कैपिटल R एंड स्मॉल r, देन ऐसा बोल सकते हैं कि VAB इज इक्वल टू I रो L, है कि नहीं? I रो L क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज IRAB होगा और RAB की वैल्यू कितनी है? रो L है. एक स्टेप लिखता हूं, चलो ज्यादा समझ में आएगा स्टेप लिखूंगा तो. IRAB और ये IRAB का वैल्यू कितना होगा? I रो L. तो ये जो भी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो कि EMF के जितनी होगी. समझे कि नहीं समझे? मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है. क्या है कॉमन सेंस वाली बात? जरा ध्यान से देखना कि अगर पॉइंट A से लेके B तक मिलने वाला वोल्टेज अगर कितना है? E जितना है, तो पॉइंट A से लेके C तक मिलने वाला जो वोल्टेज होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? ये E से कम होगा या ज्यादा होगा? इतना बता दो मुझे. कम होगा. कम होगा ना? सिंपल सी बात है. और यहां से भी दिखता है. चलो हियर हम ऐसा बता सकते हैं. अभी हमने क्या लिखा? VAB इज इक्वल टू क्या लिखा? तो कि I रो कैपिटल L लिखा. एंड हमने थोड़ी देर पहले VAC क्या लिखा? तो कि वो लिखा हमने I रो इंटू स्मॉल l लिखा. तो अगर आप यहाँ पे VAB और VAC का रेशियो लेते हो तो ये रेशियो क्या आएगा? कैपिटल L अपॉन स्मॉल l आएगा. और यहां से नीचे VAC होना चाहिए. तो यहां से क्या होगा? VAC का जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल l अपॉन कैपिटल L और ये क्या हो जाएगा? VAB हो जाएगा. और यहां से क्या पता चलेगा कि VAC का जो वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन VAB. समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूं जरा ध्यान से समझना. यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो, अगर मैं क्या करता हूं, C को अगर मैं A के पास लेके आता हूं तो ये L रिड्यूस हो जाएगा. C को अगर मैं A के पास लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा? L रिड्यूस हो जाएगा. और C को अगर मैं B के पास लेके जाता हूं तो L इंक्रीज हो जाएगा. मतलब
सी की मूवमेंट की वजह से, सी के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, क्योंकि ए और सी के बीच का लेंथ चेंज होगा और साथ साथ में ए और सी के बीच का पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपको आप चाहते हो कि वी ए बी और वी ए सी इक्वल हो जाए तो आपको सी को कहां पे ले जाना पड़ेगा, बी पे ले जाना पड़ेगा। जब आप सी को बी पे ले जाओगे तब जाके वी ए बी इज इक्वल टू वी ए सी होगा। तो हम जनरल सेंस में क्या बोल सकते हैं कि वी ए सी की वैल्यू या तो इक्वल टू वी ए बी हो सकती है या तो लेस देन वी ए बी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। चलो यहां तक मुझे समझ में आ चुका है, मेरा ये कंसेप्ट ही मेरे दिमाग में आपको डालना था। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला एप्लीकेशन जो था वो करते हैं कि कैलकुलेटिंग ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। जब भी हमको ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, ये हमारा जो P है और Q है, देखो मैंने अलग से पहले से ही रखा हुआ है। ये अभी तक P और Q के बीच में हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया था, तो अब तक ये AP वाला वायर और CQ वायर का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, P और Q के बीच में हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। जिस बैटरी का मुझे EMF फाइंड करना है वो बैटरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हम बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। बैटरी कनेक्ट करने के टाइम पे ध्यान रखना कि ये जो ड्राइविंग बैटरी होता है, ऊपर वाला बैटरी होता है, उसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग बैटरी कहते हैं। ड्राइविंग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर इस तरफ है तो यहाँ पे भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ही आना चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट, ओके। और वैसा क्यों ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, यू विल लर्न वेरी सून। फिर क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे एक स्विच रख देंगे, यहाँ पे एक स्विच रख देंगे और फिर क्यू के साथ कनेक्ट कर देंगे। दिस इज हाउ वी नीड टू कनेक्ट। ये स्विच है, ये अपना बैटरी है, ओके। मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो है E1 और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है R1, ओके। तो इस बैटरी का ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है। तो जिस बैटरी का ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना हो उस बैटरी को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। किसके बीच में, तो कि P एंड Q के बीच में। तो कनेक्ट अ टेस्ट बैटरी, उसको टेस्ट बैटरी बोलता है, टेस्ट सेल बिटवीन P एंड Q इन द सर्किट, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो कि ऐसा करने से कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अगेन, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइविंग बैटरी इज कनेक्टेड विथ ए, तो डेफिनेटली ये पॉइंट ए जो होगा ना वो हाई पोटेंशियल पे होगा। फिर एक पॉइंट है यहाँ पे सी, तो सी जो होगा वो कौन सा पोटेंशियल पे होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। और बी, उसके आगे बी तो और भी लोअर पोटेंशियल पे होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ए और सी की बात करूं तो पोटेंशियल एट ए इज हायर देन पोटेंशियल एट सी। इतना तो समझ में आता है। अब देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अब लोअर और हायर पोटेंशियल की वजह से आई कैन इमेजिन, इसको मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूं, देखो ऐसे इमेजिन कर सकता हूं, VAC, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। मैं इस पर्टिकुलर वायर का लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल हाई है, राइट हैंड साइड पोटेंशियल लो है, तो मैं इस वायर को एक बैटरी की तरह इमेजिन कर सकता हूं और उस बैटरी का नाम मैंने दे दिया VAC। और आप सब जानते हो VAC का वैल्यू कितना है, तो VAC का वैल्यू है KL। अगर ये AC का जो लेंथ है L है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया, A के साथ यहाँ पे P कनेक्ट किया हुआ है और B के साथ हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, Q कनेक्ट किया हुआ है। और इसके बीच में मैंने क्या रखा हुआ है, एक बैटरी रखा हुआ है जिस बैटरी का EMF है E1। तो बस ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करते हैं। देखिए ये हो गया P और ये हो गया Q, ये आ गया E1। इज दैट क्लियर? इस जो पिक्चर को आप देख सकते हो, यहाँ पे देखते हो ना, वही पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिखाया है। इसको कहते हैं सेकेंडरी सर्किट।
ये ऊपर वाला लाल वाला जो सर्किट है ना, रेड सर्किट, उसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट, और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट में हम प्रीवियस टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बैटरी क्या करेगी, इसका पॉजिटिव यहाँ पे, इसका पॉजिटिव यहाँ पे है, तो यहां से करंट एक निकलेगा और उस करंट को अपने देते हैं नाम I1, और यहां से भी एक करंट निकलेगा, इसको अपने नाम देते हैं क्या, तो कि I2 नाम देते हैं। ठीक है, ऊपर I1 है, नीचे I2 है, तो यहां पे आप ऐसा देख सकते हो, यू कैन सी। अब ये I1 और I2 में से कौन बड़ा होगा, तो हमने प्रीवियस टाइम डिस्कस किया था, अगर VAC इज ग्रेटर देन E1 तो हम बोल सकते हैं I1 इज ग्रेटर देन I2, और ऐसी सिचुएशन में करंट जो होगा इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया? अगर VAC इज लेस देन E1 तो ऐसी सिचुएशन में I1 लेस देन I2 हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यू कैन सी दैट करंट इज क्लॉकवाइज। अगर मैं इस C को, ध्यान से समझना, इस C को अगर मैं A के बहुत नजदीक लेके आता हूं, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आता हूं, तो देखो ये C यहां पे आ गया, लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल नाउ, लेंथ बहुत छोटी है, तो क्या होगा, VAC इज लेस देन E1 हो जाएगा। लेंथ बहुत छोटी है तो की बात है, अदरवाइज नहीं। है अगर लेंथ बहुत छोटी है तो VAC लेस देन E1 हो जाएगा, और VAC लेस देन E1 हो जाएगा तो करंट क्लॉकवाइज घूमेगा। करंट क्लॉकवाइज घूमेगा तो मान लो गैल्वेनोमीटर मुझे इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब मैं धीरे धीरे इस पॉइंट को, C को धीरे धीरे राइट हैंड साइड लेके जाता हूं, और मान लो B पे आ गया, तो क्या हो गया, VAC का वैल्यू कितना हो गया, VAB जितना हो गया। VAC का वैल्यू कितना हो गया, VAB जितना हो गया, और ये VAC अब इस केस में क्या होगा, ये E1 से क्या होगा, बड़ा होगा। VAC इस केस में ये E1 से बड़ा होगा, और E1 से बड़ा होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, ऐसा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऑपोजिट टू द प्रीवियस केस। प्रीवियसली अगर वो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, तो अब ये क्या करेगा, राइट में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। हैं इतना यहां से लॉजिक लगा के अपने समझ सकते हैं कि जैसे ही इस पॉइंट C को मैं A से लेके B तक शिफ्ट करता जाता हूं, वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर धीरे धीरे क्या होता है, राइट हैंड साइड उसका डिफ्लेक्शन शिफ्ट होता जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो उसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि अगर मैं पॉइंट A पे C रखता हूं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड, और C को मैं पॉइंट B पे रखता हूं तो रिफ्लेक्शन ऑन राइट हैंड साइड। तो पहले हम यहां पे वही लिखेंगे, हियर ओके, व्हेन टर्मिनल C is nearer to A, then direction of deflection in galvanometer is opposite to direction of deflection when terminal C is capped on B। ठीक है, A की तरफ जो डिफ्लेक्शन मिलेगा और B की तरफ जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो ऑपोजिट होगा, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि we get point C in between A and B, point C between A and B, such that galvanometer shows zero deflection। समझे कि नहीं समझे? गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसा एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा बीच में। तो लेट
that point of zero deflection is situated at distance L from A. This is called null point. समझे कि नहीं समझे? When null point is achieved, क्या होगा? When null point is achieved, बहुत कुछ होगा. पहला काम क्या होगा? तो कि करंट इन गैल्वेनोमीटर becomes zero. ओके, करंट वैसे तो इन नहीं बोलना चाहिए, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो बनना बोलना चाहिए. एंड देयरफॉर नो करंट इन सेकेंडरी सर्किट. ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या हो गया? आप डायरेक्टली अगर कोई भी करंट यहां पे नहीं है तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट पी आर इक्वल, एंड पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट क्यू आर ऑल्सो इक्वल. हाँ या ना? सी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. Yes, sir. और ए पॉइंट और पी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. बिकॉज अब बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसा मान सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू C एंड P इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू A. तो इसका मतलब ये हो गया कि A और C के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा मुझे, वही वोल्टेज मुझे क्या मिलेगा? P और Q के बीच में मिलेगा. हेंस वोल्टेज बिटवीन P एंड Q क्या हो जाएगा? तो कि वोल्टेज बिटवीन A एंड C हो जाएगा. समझ में आ गया इतना एवरीवन? Yes, sir. तो यहां से Yes, अब sir. देखो वोल्टेज बिटवीन P एंड Q क्या है. देखो ये P जो है ना, ये अपनी जो E1 बैटरी का टर्मिनल है, और Q जो है वो भी E1 बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. मतलब अल्टीमेटली P एंड Q आर द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी E1. तो बैटरी E1 का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो कि P और Q के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी. तो यहाँ पे VPQ इज बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी E1, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? E1 माइनस IR1 होगा कि नहीं होगा? टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला. Yes, sir. VAC. बट क्या? I तो जीरो है ना? I तो क्या है? जीरो है. अभी चलो एक काम करते हैं, यहां पे इस करंट को मैं I0 डैश बोल देता हूं, बिकॉज ऊपर से मैंने I लिया है ना, तो फिर मुझे यहां पे I0 डैश बोलना पड़ेगा. आई कैन नॉट हैव द सेम करंट. ये I0 डैश तो जीरो है. अगर जीरो है तो मुझे क्या मिलेगा? E1 इज इक्वल टू VAC मिलेगा. और VAC का वैल्यू आप सब जानते हो क्या होता है? K इंटू स्मॉल l होता है. हम जानते हैं VAC इज इक्वल टू KL, एंड I डैश क्या हो गया? जीरो हो चुका है. तो देखो यहां से मुझे क्या मिल चुका है? देखो E1 इज इक्वल टू KL मुझे मिल चुका है. समझे कि नहीं समझे? अगर E1 इज इक्वल टू KL है तो K की वैल्यू आप I रो डाल सकते हो, I रो L, where I is the current which is flowing from battery driving cell. ड्राइविंग सेल से निकलने वाला जो करंट है, दैट करंट इज बेसिकली I. चलो समझ में आ गया ये इक्वेशन? और आप देखो, आपको कुछ नहीं करना है. ड्राइविंग सेल का जो करंट है I, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखो. ठीक है, रो आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि वायर आपने ही खुद ने लगाया हुआ है, और L आपने खुद ने लेंथ मेजर किया हुआ है उस पर्टिकुलर वायर का. अगर करंट आपके पास है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होता है वो आपके पास है, करंट तो आप मेजर कर सकते हो ना. ये I कैसे मेजर कर सकते हो? सिंपल, यहां पे क्या करोगे? सर्किट के अंदर इस पर्टिकुलर जगह पे, कोई भी जगह पे, यहां पे आप A मीटर लगा दो. ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर की तरफ एक A मीटर लगा दो. A मीटर आपको करंट की वैल्यू दे देगा. ठीक है,
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको पता होना चाहिए वायर के लिए, और L जो है दैट इज द लेंथ विच यू हैव केप्ट, वो आपका जो टर्मिनल C टर्मिनल है, जो मूवेबल टर्मिनल, वो आगे पीछे मूव करता है, तो उससे आपको L की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड नाउ वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ L, ओके, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ L, आपको EMF मिल चुका है। दिस इज EMF ऑफ आई कैन से टेस्ट सेल। चलो अभी करना है बैटरी का कनेक्शन। दो सेल की कनेक्शन करनी है ना, तो दो सेल हमको यहां पे कनेक्ट करने होंगे पैरेलल में। ये एक सेल में यहां पे कनेक्ट करता हूं जिसका EMF है E1, फिर एक और सेल यहां पे कनेक्ट करता हूं जिसका EMF है E2। जो दो सेल की आपको कंपैरिजन करनी है, वो दो सेल आप यहां पे लगाओगे वन, ठीक है, पैरेलल में। ये आपका स्विच होगा S1 और ये स्विच होगा S2। ये जो सेल है उसका EMF कितना है E2। ये जो सेल है उसका EMF है E2। पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव यहां पे, पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव यहां पे। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव मैच होने चाहिए, दैट्स द कंडीशन। ओके, चलो अभी ये सर्किट समझ में आ गया सबको। यहां पे मैंने क्या किया, पहले देखो मुझे एक सिंगल सेल का EMF निकालना था, तो मैंने क्या किया, P और Q के बीच में मैंने एक सिंगल सेल लगाया। अब मुझे क्या करना है, तो कि दो सेल की कंपैरिजन करनी है, तो दो सेल की कंपैरिजन करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, P और Q के बीच में मैंने दो सेल यहां पे लगाए हैं। इज दैट अंडरस्टूड परफेक्टली? कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो पहले यहां पे क्या करेंगे, सर्किट को कनेक्ट करेंगे। अब स्विच S1 को ऑन करेंगे। स्विच S1 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला बैटरी कनेक्ट होगा सर्किट के साथ P और Q के बीच में, वाइल नीचे वाला बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ध्यान से सुनो, अगर मैं स्विच S1 को ऑन करता हूं तो ये ऊपर वाला जो है ना बैटरी, दैट विल बी इन द कनेक्शन बिटवीन व्हाट, P एंड Q, ठीक है, वाइल नीचे वाला बैटरी क्या रहेगा, डिस्कनेक्टेड रहेगा। समझ में आया ना? एग्जैक्टली कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब जैसे पहले अपने होता था ना कि मान लो यहां पे क्या किया था हमने, जस्ट लुक एट हियर, यहां पे सिर्फ एक सेल कनेक्टेड था, सिंगल सेल वाज कनेक्टेड हियर, राइट, सिंगल सेल, यू कैन सी दैट। तो यहां पे भी अब क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच S1 को ऑन रखता हूं और स्विच S2 को ऑफ करता हूं, तो क्या हो जाएगा, सिंगल सेल E1 विल बी इन द कनेक्शन। उसके बाद अगर मान लो स्विच S2 को ऑन करता हूं और स्विच S1 को ऑफ कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिंगल सेल E2 जो है वो कनेक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों सेल को बारी बारी कनेक्ट करेंगे, दोनों सेल को बारी बारी कनेक्ट करेंगे। पहले ऊपर वाला सेल कनेक्ट करेंगे, फिर नीचे वाला सेल कनेक्ट करेंगे, तो देखते हैं उसमें हमको क्या मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले ओके, कनेक्ट टू टेस्ट सेल्स of EMF E1 and E2 as shown in circuit for comparison। ऐसे हम उसको कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, कनेक्ट करने के बाद तो पहला काम यहां पे ये करना है, switch S1 is open and S2 is, sorry उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, नहीं उल्टा लिखना नहीं चाहिए, चलो मैं पहले ठीक कर देता हूं। स्विच S1 को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करना मतलब ऑन करना। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ऑन ऑफ ही लिखता हूं, मगजमारी ना रहेगी। स्विच S1 इज ऑन एंड स्विच S2 इज ऑफ। पहले हमको ये काम करना है, समझ में आया? स्विच S1 को ऑन करना है, मतलब क्या करेंगे, ऊपर वाली जो S1 दिख रही है ना उसको अपने नीचे ला देंगे, क्लोज कर देंगे इसको। ऐसा करने से क्या होगा, स्विच S1 इज ऑन, स्विच S2 इज ऑफ।
In this case, E1 remains connected between P and Q, है कि नहीं? E1 जो बैटरी है वो रिमेन्स कनेक्टेड रहेगी P और Q के बीच में। अब जैसे ही वो कनेक्टेड रहेगी, हम क्या करेंगे, बस ये जो टर्मिनल C है ना, उसको A और B के बीच में क्या करेंगे, मूव करेंगे और नल पॉइंट को अचीव करेंगे। नाउ टर्मिनल C is moved between A and B to achieve what? Null point. Let null point is achieved at distance, कौन से डिस्टेंस पे भाई? L1. null point is achieved at distance L1. समझे कि नहीं समझे? Let null point is achieved at distance L1. तो L1 डिस्टेंस पे अगर नल पॉइंट मुझे मिला है तो इसका मतलब क्या होगा? Therefore VAC क्या हो जाएगा? K L1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एवरीवन जल्दी से Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. VAC will be KL1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये KL1 हो गया। अच्छा, लेकिन जब नल पॉइंट मिलता है तो क्या होता है भाई? यहां पे I डैश क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट I डैश होता है वो 0 हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में VAC का वैल्यू कितना हो जाता है? E1 हो जाता है कि नहीं हो जाता? बट VAC is equal to E1 at null point. Okay, and therefore E1 का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? KL1 मिला है। इसको अपने बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको दूसरी बार इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब क्या करने वाले हैं? स्विच S1 को ऑफ करेंगे और स्विच S2 को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? स्विच S1 is off and S2 is on. चलो, ये हो गया। अब क्या करते हैं देखो जरा ध्यान से। सो हियर वी कनेक्ट, कौन सी बैटरी कनेक्ट करेंगे बोलो? बैटरी E2 बिटवीन व्हाट? विथ तो नहीं बोल सकते, बट बिटवीन क्या? P and Q. P and Q. ओके, चलो। In this case, let null point is achieved at distance L2. So ऐसे सिचुएशन में VAC क्या हो जाएगा? KL2 हो जाएगा। ओके, KL2 हो जाएगा। फिर से यही लिखना है, बट VAC इस केस में क्या होगा? E2 एट नल पॉइंट, एंड देयरफॉर E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? KL2 आ जाएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे देखो, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? कोई बताएगा? E1 E2 by L. E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा ना।
E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा. तो दिस इज हाउ इट इज डन. तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ बैटरी. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंपेयर टू बैटरीज. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंपेयर टू बैटरीज. समझे कि नहीं समझे? को क्या करेंगे, देखो यहां पे P और Q के बीच की सर्किट को चेंज करना पड़ेगा. बाकी सब कुछ वैसे ही रखते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही होता है. सिर्फ P और Q के बीच की सर्किट क्या होती है, चेंज होती है. देखते हैं चलो इसमें कैसे होगा. P और Q के बीच में अब क्या करने वाले हैं, तो हम एक जो सर्किट कनेक्ट करने वाला है ना, वो यहां पे ध्यान से देखना. दिस इज रियली क्रूशियल. यहां पे जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना हो, वो बैटरी ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको अपने क्या करते हैं, स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं. उसको अपने स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं ऐसे. ये उसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये बैटरी का EMF है E1. ओके, ये प्लस और ये माइनस. और यहां पे क्या कनेक्ट करते हैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस रखा जाता है. दिस इज वन रजिस्टर. ठीक है, ये रजिस्टर की वैल्यू मान लो कि कैपिटल R है. ओके, इस रजिस्टर की वैल्यू है कैपिटल R. तो मैंने ये सर्किट कनेक्ट की. कहां पे कनेक्ट की भाई, तो के बिटवीन P एंड Q. समझ में आया? P और Q के बीच में मैंने कौन सी सर्किट कनेक्ट की. एनी क्वेरीज इन दिस गाइस? मैंने गलती किया है, जस्ट सॉरी फॉर दैट. ये स्विच हम यहां पे नहीं रखेंगे. ये जो स्विच है ना, हम यहां पे नहीं रखेंगे. देखो वो स्विच को हम कहां पे रखेंगे, ये रेजिस्टेंस तो ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे. स्विच को हम रखेंगे इसके साथ, इस रेजिस्टर के साथ. यहां पे स्विच रखा जाएगा. ये स्विच है S और ये रेजिस्टर है R. ओके, स्विच की पोजीशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है. इट मैटर्स अ लॉट. स्विच की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है. चलो अभी स्विच की पोजीशन फिक्स कर दी. अब क्या किया जाए, तो देखो सबसे पहले स्विच S को क्या करेंगे, ओपन रखेंगे. फर्स्ट जॉब इज कीपिंग दिस स्विच ओपन. पहले तो अपने थोड़ा फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. ओके, फॉर इन दिस केस connect a battery whose internal resistance is to be measured between P and Q, parallel to लोड R as shown. लोड मतलब रजिस्टर, तो पैरेलल टू लोड R as shown. ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया. अब क्या करेंगे, स्विच S is off. अभी तो हमने क्या किया, स्विच सिर्फ ऑफ रखा है. वी आर नॉट बेसिकली मेकिंग इट ऑन. स्विच S इज ऑफ. तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल R जो है ना रजिस्टर, दैट विल नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट. हाँ या ना? जैसे ही स्विच S ऑफ होगा, तब नीचे वाला पाथ जो है उसमें से तो करंट पास होने नहीं वाला है. और करंट अगर नीचे वाले पाथ से फ्लो नहीं होगा, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सिर्फ E1 बैटरी को हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, P और Q के बीच में कनेक्ट किया हुआ है. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. S is off. Yes, sir. बैटरी
with EMF E1 is connected between क्या P and Q. Now on moving C between A and B, we get null point. कहां पे null point मिलेगा? At distance L1 from A. So हम ऐसा लिख सकते हैं कि VAC is going to be K into L1. सही है कि नहीं? अगर नल पॉइंट मुझे L1 डिस्टेंस पे मिलता है तो मुझे VAC इज इक्वल टू के L1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, तो इतना तो हो गया. VAC इज इक्वल टू के L1. अभी क्या है, ऐसे सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हैं, बट VAC इज इक्वल टू व्हाट? E1. एंड उसकी वजह से therefore E1 क्या हो जाएगा? के L1 हो जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. यहां तक क्लियर सबको? ये तो हमने पहले भी किया हुआ है. When switch S is on, स्विच S को अगर अपने ऑन कर देते हैं तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि इन दिस केस resistance R, in this case resistance R, okay, will flow, sorry, resistance R will be connected with circuit, okay, and current supplied by battery E1 will flow through it. करंट सप्लाई बाय बैटरी विल फ्लो थ्रू इट. इसके अंदर से करंट फ्लो होगा. अब सोचो यार, देखो अपने टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट क्या था. ये बैटरी जो E1 वाली बैटरी है ना, उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? VPQ. और डेफिनेशन उसकी क्या होती है? E1 माइनस IR1. तो पहले तो क्या था? I का वैल्यू 0 था, तो अपने क्या बोल देते थे? E1 की जगह पे VPQ को डायरेक्टली लिख देते थे. लेकिन अब क्या, V1 की जगह पे डायरेक्टली इसको E1 को हम VPQ की जगह पे डायरेक्टली E1 को नहीं लिख सकते, बिकॉज अब ये जो R1 है ना, उसमें से कोई ना कोई करंट पास होता है, और वो कोई ना कोई करंट पास होने की वजह से कोई ना कोई मुझे वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा उसके अक्रॉस, और वोल्टेज ड्रॉप जो मुझे मिलेगा इसकी वजह से अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मेजर होगा, EMF मेजर नहीं हो सकता. समझे कि नहीं समझे? तो समझ में आ गया ना कि ये जैसे ही बैटरी को स्विच को ऑन किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया. रेजिस्टेंस कनेक्ट होते ही क्या हो जाता है कि करंट उसमें से पास होता है, उसमें से करंट पास हो जाएगा. अब क्या, अभी भी आपको क्या करना है? सी को मूव तो करना है. सुनो, सी को क्या करना है? मूव करना है. सी को मूव करके क्या कर देना है आपको? क्योंकि देखो, अगर बैटरी से यहां से I2 निकला, फॉर एग्जांपल यहां से I2 निकला, तो I2 के इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होंगे? दो टुकड़े होंगे. एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ I2 डैश, और दूसरा टुकड़ा कहां पे जाएगा? ये कैपिटल R की तरफ जाएगा. मैं चाहता ही नहीं हूं कि यहाँ पे I1 और I2 का सामना हो. मुझे तो ये आउटर सर्किट में तो करंट क्या कर देना है? 0 कर ही देना है. मुझे सिर्फ ये इंटरनल सर्किट जो मेरी है ना, यहां से E1 से कैपिटल R से R1, और R1 से वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में, यहां पे ही करंट फ्लो होना चाहिए. मुझे आउटर सर्किट में कोई भी करंट नहीं चाहिए. और आउटर सर्किट में अगर मुझे कोई करंट नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सी को फिर से ए और बी के बीच में मूव करना पड़ेगा. और जैसे ही मैं इसको ए और बी के बीच में मूव करूंगा, मुझे कोई ना कोई पोजीशन पे नल पॉइंट तो मिल ही जाएगा. समझे कि नहीं समझे? हियर अगेन सी इज allowed
to move between A and B, and we get null point at distance L2 from A। तो इसके ऊपर से अपने बोल सकते हैं VAC इज इक्वल टू KL2, है कि नहीं? VAC इज इक्वल टू KL2। बट VAC का जो वैल्यू है ना, वो VPQ का वैल्यू होगा कि नहीं होगा भाई? देखो यहां पे सर्किट फिर से देखो, A इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ P एंड C इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ Q, और करंट तो फ्लो यहां पे भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने नल पॉइंट अचीव किया है। और नल पॉइंट की अचीव करने की वजह से A का और P का पोटेंशियल सेम होगा, C का और Q का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जैसे ही ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, आई कैन से VAC इज इक्वल टू VPQ, और उसकी वैल्यू क्या बोलेंगे? PQ, एंड देयरफॉर VPQ का फॉर्मूला क्या आ चुका है? KL2 आ चुका है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। समझे कि नहीं समझे भाई एवरीवन? नाउ से करंट I1 is flowing through, I can say, internal circuit, containing what? Resistance capital R and internal resistance R1। ओके, मतलब यहां से इसके अंदर से ये जो करंट फ्लो होगा, उस करंट को मैं नाम देता हूं I1। ओके, इस करंट को मैं नाम दे देता हूं I1। समझ में आया ये I1 क्या होता है? इसको मैंने नाम दे दिया I1। तो अब क्या कर सकते हैं? अगर करंट I1 फ्लो हो रहा है तो VPQ क्या होगा? बोलो, कोई बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VPQ इस केस में? मुझे बताओ। चलो, P और Q के बीच का टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो कि EMF ऑफ द बैटरी माइनस ये इंटरनल रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होता है वो करंट, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू E माइनस IR, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्मूला में ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 के साथ कौन सा करंट आता है? तो कि जो करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में से फ्लो होता हो वो करंट आता है। तो VPQ की वैल्यू हो गई E1 माइनस I1 इंटू R1। समझ में आया ये? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. VPQ की जगह पे अपने लिखेंगे क्या? E1 माइनस I1 R1 लिखेंगे। चलो, therefore VPQ will be E1 माइनस I1 R1। बट VPQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपने? KL2 लिख सकते हैं, E1 माइनस I1 R1, है कि नहीं? चलो, अब E1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बोलो। E1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? KL1. KL1, वेरी गुड। इसकी जगह पे अपने लिख सकते हैं KL1। क्यों KL1 लिख सकते हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले इंडिविजुअली E1 का वैल्यू तो पहले ही फाइंड कर लिया था। देखो, स्विच को ऑफ रख के हमने E1 का वैल्यू KL1 होता है वो हमने पहले ही फाइंड करके रखा था, तो इसलिए हम यहाँ पे KL1 रख सकते हैं। अच्छा, चलो, ये इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ I1 क्या होगा? क्योंकि I1 तो ये छोटी वाली सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट है कि नहीं है? देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट से फ्लो होने वाला करंट है, तो इस सर्किट में से मिलने वाला जो करंट I1 होगा वो I1 कितना होगा? तो कि वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? E1, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R और स्मॉल r,
कैपिटल आर यहाँ पे है, स्मॉल r1 यहाँ पे है, हाँ या ना? ये I1 की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? देयरफॉर KL2 इज इक्वल टू KL1, I1 की जगह पे मैंने लिख दिया E1 अपॉन कैपिटल R प्लस R1, यहां पे भी क्या आएगा R1। रीजन क्या है? I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 हो जाएगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको भाई? बस यहां से अब R1 को Yes, क्या sir. करो, सब्जेक्ट बना दो। यहां से आप R1 को क्या करो, सब्जेक्ट बना दो, और जैसे ही आप R1 को सब्जेक्ट बनाओगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ मैथमेटिक्स बाकी रहा है। R1 को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करने में क्या करोगे, कैसे करेंगे, देखो। हो रहा है? सी आई एम ऑल्सो डूइंग हियर, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। R अपॉन R1 मिलेगा, और यहाँ पे L2 होगा, और नीचे क्या आएगा, L1 माइनस L2 आ जाएगा। अब इसका इनवर्स कर देते हैं, R1 अपॉन कैपिटल R इज गोइंग टू बी L1 माइनस L2 अपॉन L2 आ जाएगा, एंड उसके ऊपर से R1 का वैल्यू मुझे कैपिटल R इंटू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 -1 मुझे मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखना। हमने क्या डिराइव किया था, ऑल्सो हमने डिराइव किया था कि E1 क्या है, KL1 है, और हमने ये भी डिराइव किया था कि VPQ जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, KL2 है। याद आया? ये डिराइव किया था, देखो ये रहा, Yes, sir. VPQ इज इक्वल टू KL2 है ना, और ये KL1 की वैल्यू क्या है, E1 है। तो अगर ये दोनों रिजल्ट को हम कंबाइन करें, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, E1 अपॉन VPQ करेंगे, तो भी मुझे क्या मिलेगा, L1 अपॉन L2 मिलेगा। और उसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूं, R1 का दूसरा फॉर्मूला बना सकता हूं, कि ये होगा E1 अपॉन VPQ -1, है ना? Yes, sir. ये उसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसको बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे ना, तो E बाई V लिखा होगा, मैंने E1 बाई VPQ लिखा है। बहुत सारी दूसरी बुक्स में क्या लिखा होगा, E अपॉन V लिखा होगा। लेकिन आप समझ सकते हो, अपनी कैलकुलेशन में हमने E1 लिया था इसलिए E1 आया, लेकिन अगर जनरल सेंस में बात करें तो ये होता है EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज। ओके, जनरल सेंस में अगर हम बात करें ना इसको, तो ये क्या होता है, जस्ट नोट, just a note, internal resistance of a cell R1, या फिर जनरल सेंस में हम इसको R1 नहीं बोलते, सिर्फ R बोलते हैं। R इज इक्वल टू लोड, ब्रैकेट में क्या आएगा, E, और यहां पे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज।
-1 और ये हो गया खत्म। ये उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे कि ईएमएफ कौन सी बैटरी का, तो कि जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है उसी बैटरी का ईएमएफ, उसी बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जो भी है वो, और क्या कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन?